Today's session is our end review session. As we know, the name of the course is Highway Engineering. Course code is 22302. And our course structure we already have been seen. That is 70 marks final examination, 3-hour duration for the examination. Theory PA will carry the 30 marks, in which 20 marks is for each class test. At the end of the semester, average of these two will be taken, and 10 marks is for the micro project. Last was PRPA, practical progressive assessment, that carries 25 marks, and practical end semester examination that will carry 25 marks. So at the end semester of the practical, you need to write or perform any one practical according to the lists. Okay, that you can choose, or I will allot at the end of the semester. Then we have been seeing our course outcomes, and all the course outcomes are related to an individual chapter. Like first, types of roads as per the IRC. Second, geometrical design features of different highways. Third, perform different tests on road material. Fourth, evaluate traffic flow characteristics. Fifth, implement hill road construction. And sixth, undertake the maintenance of roads and drainage. These all the outcomes are again related to individual chapter. These are the summary of an individual chapter. According to first course outcome, this is the list that you can refer at the time of the designing road permit. Next, we have been seeing units with their mark distribution. We are having 6 units accordingly with their mark distributions. Next, we have been seeing the difference between roads and highways. Okay, so इसमें कुछ doubt होगा तो you can text in an WhatsApp group. पहले आप ये today's session is of 15 marks. First of all, listen all the 15 minute session and then message me or call me. ठीक है, या हम लोग Google Meet के जरिए एक कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेंगे जिसमें आप लोगों को जो भी डाउट्स रहेंगे दैट वी विल क्लैरिफाई. नेक्स्ट था, अभी इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट ये था कि विड्थ का कंफ्यूजन था. तो 3 to 7 मीटर रोड की जो विड्थ रहेगी एक रोड की विदाउट डिवाइडर, ठीक है, कंप्लीट रोड विड्थ दैट शुड बी 3 to 7 मीटर. सो इट विल बी कॉल्ड एज अ रोड, नॉर्मल रोड दैट मे बी इन अ सिटी, मे बी आउटसाइड. और इसी रोड की एक लेन की विड्थ अगर 7 मीटर से इंक्रीज हो जाती है, जो कि अप टू जाती है 15 मीटर, तो वो हो जाएगा, उस तरीके के रूट्स को हम लोग बोलेंगे हाईवे. ठीक है, प्लस दोनों में बिगेस्ट डिफरेंस क्या है कि जो रोड रहेगा वो इंटरनल सिटी के अंदर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करेगा. और हाईवे का क्या है, इट कनेक्ट्स मेजर रोड्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, स्टेट्स, मेजर सिटीज, एक्सेट्रा. So these two biggest examples that differentiate road and highway. Next, we have been started our unit number 1. In that, we are having a following points and that we have been learned in detail. Likewise, in the lecture number 1, there is some problem due to the merging of the lectures. That this slide showing only these 2 points. Okay, so you can recall it from today's session, like scope and importance of roads in India, how it is important. So it will give you easy and quick transportation of men and materials. Remote areas and rural areas become accessible. During emergency like war, quick and easy transportation of soldiers, food and ammunition. Ammunition मतलब जिस चीज की वहां पे जरूरत है वो प्रोवाइड करना. वॉर अगर है वहां पे अगर आपको किसी भी तरीके के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, गन्स प्रोवाइड करने हैं, तो वो प्रोविजन करना इज नथिंग बट अ प्रोविजन ऑफ एम्यूनिशन. नेक्स्ट आपका फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द एरिया एंड ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एन एयरवेज प्लेज एन वाइटल रोल ड्यूरिंग द फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड सिचुएशन. ओके, अगर आपकी रोड की जो भी सिचुएशन रोड की जो भी आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हो वो इनकेस फेल हो जाती है. ये फेल कब होती है, एक तो रोड कंडीशन खराब हो जाएगी या फिर वेदर कंडीशन वैसी रहेगी कि आप रोड कम्युनिकेशन यूज नहीं कर सकते. तब जो है तो आपका एयरवेज विल प्ले एन वाइटल रोल. और डोर्स क्या करते हैं, रोड्स क्या करते हैं, आपको डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं. सो दिस इज द स्कोप. Along this, you can write any 4 points that will give you the 4 marks in examination. Next is was characteristics of the road transport. So, whatever the bolded words are here are the most important words. Like it gives you quick and easy transportation,
access to the agricultural area, then it can be used by various categories of vehicles. Construction and maintenance of the road transport is cheaper. Road transport is a basic need in case of fire and police protection, and also the most important, it gives you door to door step connectivity. ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो विद इन अ स्पैन वो आपके घर के डोर के बाहर आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट था आपका एक्सेस टू रिच रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. So these are the characteristics of the road transport. Next, we have been seeing different modes of transportation through which you can perform the transportation activity like road, railway, airway and waterway. Okay, all these modes on which platform are they rested? Road are rested on land, railways tracks are rested on land, airway system passes through an air, and waterway through water. So the first was media modes and second was media through which that activity is being conducted. So here you can see one by one examples. Next, we have been seeing the classification of roads. First of all, there are three classifications that are to be followed all over the India. General, according to Nagpur Road Plan, and according to Third Road Development Plan, which is also known as the Lucknow Plan. And lastly, we have been seeing road classification in an urban areas like city, any developed city. जनरल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, दिस टेबल यू हैव टू मग अप. ये जो वैल्यूज है ये आपको याद करने ही पड़ेंगे. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो यू हैव टू राइट अ एग्जैक्ट वैल्यू व्हीकल्स पर डे. सेकंड था अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्टेड टनेज, कितना लोड पर डे व्हीकल्स का वो रोड बेयर कर सकता है, उसके हिसाब से ये कैटेगराइजेशन था, वेरी हैवी, हेवी, मीडियम एंड लाइट. नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. नेक्स्ट था लोकेशन एंड फंक्शन, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. नेक्स्ट था अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज्ड, अर्बन रोड, जो भी साइट है या जो भी जहां पर भी आपको रोड प्रोवाइड करना है वहां के आसपास की सॉइल को आप यूटिलाइज करोगे टू फॉर्म ए पेवमेंट विच एक्ट एज ए रोड. ठीक है, नेक्स्ट था वाटर बाउंड मैकेडम रोड. वाटर का मीनिंग पानी, बाउंड मतलब बहने को रोकना, मैकेडम लेयर्ड फिनिश्ड सरफेस दैट विल बी कॉल्ड एज अ पेवमेंट एंड रोड. तो ये हो जाएगा WBM रोड. ठीक है, ये रोड क्या, इस रोड में क्या होता है, 3 या 4 लेयर में हम लोग बोल्डर्स प्लेस करते हैं, रोल्ड करते हैं 1 by 1, एंड इसमें फिनिशिंग लेयर को हम लोग मुरूम फिल करके इसको फिनिश्ड आउट करते हैं फॉर द यूटिलाइजिंग पर्पस. दैट इज योर वर्ड, सॉरी, वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स. Next is bituminous roads that you have been seen number of times, and cement concrete roads. Last point was according to the pavement, nature of the pavement during the stresses or the during failure under stresses और temperature variation. उसमें हम लोगों ने देखे थे flexible pavement, rigid pavement. Flexible word is indicating the pavement width will get changed due to temperature variation, and fixed width will not get changed, but the failure whatever it will occur, they will occur during the central portion of the pavement. दोनों का एग्जाम्पल था bituminous roads and concrete roads. ये कुछ इमेजेस थी जो कि हम लोगों ने देखी. अर्बन रोड, सी एज आई सेड, जैसे अभी ये खेत की तरफ रोड जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिट्टी डाल के रोलिंग करके इसे रोड बना देते हैं ताकि जाने आने में आसानी हो. वाटर बाउंड मैकेडम कैसा रहेगा, सी. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एग्रीगेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे एक रोलर दिख रहा है. ऐसे एग्रीगेट्स को हम लोग 2 से 3 लेयर में लेड करते हैं. हर एक लेयर को हम लोग कॉम्पैक्ट करके रोलिंग करते हैं और फिनिश्ड सरफेस आने के टाइम पे उसके ऊपर हम लोग बिट्यूमन लेयर करके अगेन कॉम्पैक्ट कर देते हैं. नेक्स्ट था बिट्यूमिनस रोड्स एंड सीमेंट कॉन्क्रीट रोड. ये दोनों आप लोगों ने इन डेली रूटीन यू हैव बीन ऑलरेडी सीन दैट. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था रोड क्लासिफिकेशन इन इंडिया कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ. सबसे पहले आया आपका नागपुर रोड प्लान जिसका स्पैन था 1943 to 1963. उसमें क्लासिफिकेशन किया गया नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड. सेकेंड आया आपका बॉम्बे रोड प्लान जो अगेन इट इज प्लान फॉर 20 years विद अ स्पैन. इसका ईयर क्या था आपका 1961 to 1981. एंड नेक्स्ट था थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान, अगेन इट वाज प्लान फॉर फर्दर 20 years which is also known as a Lucknow Road Development Plan.
for the span 1981 to 2001. Under this, according to the Nagpur Road Plan, whatever the categorization is given, it was further again divided into three types: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी में कैटेगराइज किया एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे. सेकेंडरी में स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड. टर्शरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड. अब आपको इनके शॉर्ट फॉर्म्स विद देयर फुल नेम्स शुड बी गेट रिमेम्बर्ड. ओके, आगे अभी मैं इसको एलाबरेट नहीं करूंगी कि एनएच है तो नेशनल हाईवे कहेंगे. यू शुड नो दैट. ठीक है, एनएच इज फॉर नेशनल हाईवे, एसएच इज फॉर स्टेट हाईवे, एमडीआर इज फॉर major district road, ODR is for other district road and VR for village roads. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था ये प्लान के डिटेल्स कि कितने लेंथ के लिए ये डेवलप हुआ एक्सेट्रा. तो यहाँ पे रिव्यू क्या हो जाएगा आपका: रोड क्लासिफिकेशन इन इंडिया, नागपुर रोड प्लान उसका स्पैन, बॉम्बे रोड डेवलपमेंट प्लान उसका स्पैन एंड थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान उसका विथ स्पैन. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट एंड थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बॉम्बे रोड प्लान आपको नहीं पूछा जाता है, so you have to prepare for the Nagpur road development plan and third road development plan. ठीक है, फर्दर हम लोगों ने इन्हें डिटेल्स में ऑब्जर्व किया था विद देयर इंडिविजुअल डेफिनेशन कि नेशनल हाईवे किसे कहेंगे. एंड द फॉर नेशनल हाईवे द वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी चेक करने वाला सबसे पहले ये वर्ड चेक करेगा तो ही आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, वरना नहीं मिलते हैं. ठीक है, फर्स्ट विल द डेफिनेशन, सेकंड विल बी द इट्स फंक्शन. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हो गए नेशनल हाईवे के एंड विथ वन एग्जांपल. अगेन इट इज रिपीटेड फॉर द स्टेट हाईवे आल्सो, डेफिनेशन, फंक्शन, लैंड विड्थ एक्सेट्रा. फॉर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो सेम, फॉर अदर डिस्ट्रिक्ट्स and for village. Accordingly, you have to mug up all these classification of roads according to Nagpur Road Development Plan. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान, जिसको कुछ भी नहीं है, उसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा से सिर्फ इतना टेबल आपको एग्जामिनेशन में बनाना है. और अगर बोला कि एक्सप्लेन और एक्सप्लेन एनी टू, तो इसमें से जो भी जिसकी भी डेफिनेशन आपको याद है वो आप लिख सकते हैं. जैसे एनएच की आती है, एसएच की आती है, जब भी आप डिफाइन करेंगे डेफिनेशन के साथ साथ उसका विड्थ जरूर मेंशन करना, दैट विल गिव यू अ फुल मार्क्स. नेक्स्ट था अर्बन क्लासिफिकेशन और रोड्स इन अर्बन एरियाज, जिसमें है 4 टाइप्स: आर्टेरियल, सब आर्टेरियल, कलेक्टर एंड लोकल. इसको आप याद रखेंगे एग्जाम्पल के जरिए. ठीक है, ये आपने जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, यही एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी लिखेंगे. इट्स ऑल्सो एन वेल एंड गुड थिंग. तो आर्टेरियल, सब आर्टेरियल, अब इसको कैटेगराइज कैसे करो: मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम ट्रैफिक मोबिलिटी और हाई ट्रैफिक ऑन आर्टेरियल रोड, उससे थोड़ी कम सब आर्टेरियल पे, अगेन उससे थोड़ी कम कलेक्टर पे, और अगेन उससे थोड़ी कम आपका लोकल जो स्ट्रीट्स है उन पे रहेंगी. ठीक है, तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी. और डायग्राम भी बनाना है. ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इज ऑल्सो गिव यू एन क्लैरिफिकेशन दैट यू हैव एन आइडिया ऑफ और अबाउट दिस कंसेप्ट दैट व्हाट इज लोकल स्ट्रीट. ठीक है, डायग्राम, डेफिनेशन एंड span, land width and example. So all these enrich explanation or regarding your each content or each categorization. ठीक है, so the total classification is like this. और इसके पहले एक कौन सा था? जनरल, नागपुर, लखनऊ और रोड. बॉम्बे आता नहीं है, इसलिए you did not need to prepare for that. ठीक है, लास्ट में था पेवमेंट, उसका हम लोगों ने देख लिया है. So the review is completed. Now you can ask for the queries. Thank you. Oh, sorry, one concept is also remaining from chapter number 1, that was road alignment. That was we have been studied in yesterday's lecture. कि alignment क्या होती है, कैसे होती है. It acts as an spinal cord of a body. जैसे हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होता है, वैसे ही रोड की सेंटर लाइन को एक्ट हम लोग करेंगे एज एन अलाइनमेंट और स्पाइनल कॉर्ड. उसका रिक्वायरमेंट देखा था, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, ये हम लोगों ने देखे थे वन बाय वन. एंड फॉर दैट यू कैन विद देयर एग्जांपल्स आल्सो. ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर.